Hello everyone. As you know that I'm doing Indian Polity by M. Laxmikanth. Last class we have seen the chapter 1. Actually we have completed the chapter 1. So today we are going to start new chapter which is nothing but is the making of constitution. Okay. This about myself. I did master from IIT Bombay and I'm a former assistant professor. Okay. Even I'm also taught in the foreign university. See, as I have already mentioned in the previous lecture, so I'm not going to miss any of the point which is given in the M. Laxmikanth. Okay, so mm, so so you will get a lot of videos for this book because see, in YouTube you will find many lecture series they by which they will cover M. Laxmikanth, but I have also seen those lectures. So what they did, they have actually telling the main point. Okay, so even though if you watch those videos, so what happened after some time, you have to read the book. Okay, so what is my goal with this lecture series? Since I'm not missing a single point which is given in the M. Laxmikanth, so if you're watching this lecture series, I can damn sure no need to read the M. Laxmikanth. Okay, so you can increase the speed of the video like 1.25x. Okay, in YouTube you have option to increase the speed. So if you are getting bored with a lot of text, you can just, or with the speed of speaking, you can just increase the little bit speed so that it will be faster. Okay, so you just follow the lecture series. See, after watching, if you want to read, you can read the book, but it's not required actually. Okay, because all the point which is given in the book that I will cover. Okay, so this is for those guys, those who are watching first time this lecture series. Every time I am not going to tell this. Okay, so if you are regularly following me, you will come to know what I want to try to say that. Okay, so anyway, we'll start the chapter 2. Again, there will be few parts for this chapter based on the length of the chapter. So this will be the first part where we'll see the very basic of what is given in the making of constitution. Okay, so let's start chapter 2. Okay, so the first topic is given in the book is demand for the Constituent Assembly. Okay, so as we have know that even before the independence, Indians were started demanding the Constituent Assembly. Okay, so that's why this topic is given like demand for the Constitution. We'll see one by one what is given in this. Okay, so it was the 1934 that the idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. Okay. So, M.N. Roy, he was the pioneer communist movement in India. Okay. So, इन्होंने actually पहली बार इसको put forward किया था. We required actually Constituent Assembly. That was done in 1934 itself. Okay. So ऐसा नहीं है कि 1946, 1945 के आसपास में हुआ था, ऐसा नहीं है. They have actually started asking about Constituent Assembly in the first time they have asked in 1934. Okay, so please remember, you might think like Jawaharlal Nehru will be the first, but no, he was not. He was M.N. Roy was the first pioneer who think the idea of Constituent Assembly. Okay, in 1934. Okay, then in 1935, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded the Constituent Assembly to frame Constitution of India. Okay, देखिए 1934 में M.N. रॉय ने इसका आइडिया रखा था, बट 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम पे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि वी रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम और कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इन 1935 इसको ऑफिशियली कह दिया गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए टू फ्रेम और कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट, in 1938, Jawaharlal Nehru, on the behalf of INC, declared that the Constitution of Free India must be framed. Okay, तो in 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने on the behalf of INC, Indian National Congress, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया that Constitution of Free India, जो हमारा फ्री इंडिया होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम. ठीक है, उसको
एकदम से फ्रेम किया जाए फॉर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। इसमें किसी का भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बाई ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि इसमें किसी बाहरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। दिस विल बी डन ओनली बाई द इलेक्टेड पीपल, दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। सो दिस इज yeah, so INC has done this also, okay. Now see, the demand was finally accepted in principle by British government in what is known as अगस्त ऑफर in 1940। देखिए, जो INC का डिमांड था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था और उसी को बोला जाता है अगस्त ऑफर, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का जो डिमांड किया गया था बाय द INC टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट हैज़ बीन actually accepted, okay. So that acceptance was known as August offer. This was done in 1940. In 1942, Sir Stephen Crisp, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of British government on the framing of Indian constitution to be adopted after World War II, ठीक है। फिर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टीफन क्रिस्प को भेजा। ही वॉज द मेंबर ऑफ कैबिनेट, ओके। वो इंडिया आए थे और उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया था कि बाई दिस वे, लाइक दिस टाइप ऑफ constituent assembly, or you can say the constitution, obviously that is for the constitution only, you can make, okay. They have actually proposes and to be adopted after World War II। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि आफ्टर, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, you know that, so after World War II will adopt that, okay. Next, the proposal were rejected by the Muslim League, which wanted India to divide into two autonomous states with two separate constituent assemblies, ठीक है। देखिए, अब जो स्टोफर क्रिस्प आए थे तो उन्होंने ऐसा नहीं कुछ बोला था कि there will be India and Pakistan and there will be two constituent assembly etc. So that's why the proposal of Stephen Crisp was rejected by the Muslim League, okay, since they were actually wanted two autonomous states, that was India and Pakistan, that we have seen in the previous lectures as well, okay, and two separate constituent assembly, ठीक है। उनको अपना खुद का एक स्टेट चाहिए था, that was nothing but is the Pakistan, and they can make the separate constituent assembly to make the constitution, okay. So that's why the Muslim League has rejected the Crisp proposal. Finally, a cabinet mission was sent to India, while it rejected the idea of two constituent assembly, ठीक है। इसके बाद लास्ट में एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा गया और उसने ये जो दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया उसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। इट पुट फॉरवर्ड ए स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग, ठीक है। और एक उन्होंने एक स्कीम भी उनके सामने रखा था फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आई मीन इट हैज़ टू बी सेटिस्फाई मोर और लेस सेटिस्फाइड टू द मुस्लिम लीग, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। इन्होंने बाद में डायरेक्ट एक्शन कर दिया था और फिर दे वर एक्चुअली डिमांडेड द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फिर जो इंडियन जो लोग भी थे उस समय उन्होंने लगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उन लोगों ने डिवाइड कर दिया पाकिस्तान के रूप में, फिर वो अलग हो गया था, ठीक है। So this was nothing but little bit about the demand for the Constituent Assembly, okay. Now we'll see the composition of the Constituent Assembly, ठीक है। तो जब हमारा Constituent Assembly बना था उसका composition क्या था, कितने members उसमें थे, ये सब चीज़ें इसमें हमें देखना है। So we'll see here the Constituent Assembly was constituted in November 1946, ठीक है। तो नवंबर 1946 में इसको बनाया गया था अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान
तो जो भी कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, ठीक है। द फीचर ऑफ इसके जो फीचर्स हैं दैट विल सी वन बाय वन। ओके, देखिए, तो इसमें पहला पॉइंट ये बोलता है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389, ठीक है। तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी। ऑन दीज ऑफ दीज 296 सीट वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। उसमें जो 296 सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी और 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी, ठीक है। इस टोटल में से 296 वर गिवन टू ब्रिटिश इंडिया and 93 seats were given to the princely states. Okay, out of 96 seats allotted to the British India, 292 members were to drawn from 11 governor provinces and 4 from 4 chief commissioner provinces, one of each, ठीक है। तो ये जो 92 सीट था इसमें से 296 में से 292 seats they were actually drawn from 11 गवर्नर प्रोविंसेस, जो भी उस समय 11 गवर्नर्स के जो प्रोविंसेस होते थे, हर प्रोविंस में गवर्नर होता था, उसके वजह से बोल रहा है कि 11 गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है। और इसके अलावा इनके 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, वहाँ से एक सीट, ये करके टोटल 296 हुआ था, ठीक है। तो 296 वर फ्रॉम गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 वर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। So this is nothing but the split of the seat. Okay. Now each provinces and princely states or group of state in case of small states were to be allotted seat in proportional to their respective population, ठीक है। जो भी सीट्स थी इसमें से हर सीट को उनके प्रोपोर्शनल जो भी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से अलॉट किया गया था। तो रफली उन्होंने क्या किया था, एक सीट जो अलॉट किया था 1 मिलियन पॉपुलेशन पे किया था, मतलब 10 लाख पे इन्होंने एक सीट को अलॉट किया था, ठीक है। सो दिस वाज द कंपोजिशन, लाइक ओके, सो 1 सीट फॉर एवरी 1 मिलियन, दिस वाज रफली, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस वाज देयर होल आइडिया, ओके। सम मोर पॉइंट, seat allotted to each British province were to be divided among the 3 principal communities, Muslim, Sikh and General, except Muslim and Sikh, in the proportion of their proportion, ठीक है। अब जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें सीट कैसे अलॉट किया गया था, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया था, दैट वाज मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है। एक्सेप्ट इसमें जनरल में मुस्लिम और सिख नहीं थे, क्योंकि आपको याद है ना इसमें कम्युनल अवार्ड कर दिया गया था, उसमें मुस्लिम्स को ही वोट करेंगे, सिख को ही वोट करेंगे, सो दैट्स वाई इसमें जनरल डाला गया फॉर ऑल, ओके, इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। अब जैसा पॉपुलेशन था उसके हिसाब से द प्रोपोर्शन वर देयर, ओके। देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ कम्युनिटी in provincial legislative assembly and vote was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote, ठीक है। वही चीज़ है कि मतलब जो भी कम्युनिटी है उसके हिसाब से ही बंदा वोट करेगा एंड दैट वोटिंग विल बी डन बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एक बंदा एक ही वोट करेगा, ओके। सो दिस इज द थिंग। इसके बाद लास्ट पॉइंट, आई थिंक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब देखिए ये तो 296 जो भी हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, एंड चीफ कमिश्नर जो इस प्रोविंसेस थे वो उसके वोटिंग होती थी, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके लिए क्या था, ये नॉमिनेट करते थे। इसको कौन नॉमिनेट करता था, इनके जो हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट थे, जो भी राजा, मान लो राजा हुआ करता था, तो राजा विल नॉमिनेट, ओके, दिस पर्सन विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। देखिए जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीरियस हैं फॉर द एग्ज़ाम,
आप YouTube पे आपको एक संविधान करके एक आई थिंक उसमें 12 या 13 वीडियो होगा, एक एक घंटे का। आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ये आई थिंक दूरदर्शन पे काफ़ी पहले आया हुआ था। स्वरा भास्कर आई थिंक सी वॉज होस्टिंग दैट, जो भी उसमें लेक्चर सीरीज तो नहीं है वो, इट वॉज काइंड ऑफ सीरियल भी आप उसको नहीं बोल सकते, एक 10-12 लेक्चर का एक है उसमें। तो आप उसको देखिए, 12 मे बी 14, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जो भी है। तो आपको उसको देखने से ये पता चलेगा ना कि हाउ दे मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द डिबेट वाज गोइंग ऑन, ठीक है। किसने क्या बोला था, किसका क्या रोल था बनाने में, ये सब सारी चीज़ें उसमें बताया गया। इट वाज वेरी नाइस, ओके। आई हैव सीन दैट, सो आई नो दैट हाउ इट वाज, लाइक हाउ दे हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो आप उसको देखिए, उसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी थोड़ा सा नाटक रूप में दिखाया गया है, ठीक है। गांधी जी को भी दिखाया गया है, नेहरू को भी दिखाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिखाया गया है। तो आप उसको एक बार देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यू विल गेट अ आइडिया लाइक हाउ वी हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी दिया हुआ है, दैट विल सी। देखिए, इट इज़ दस क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है। तो अभी देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था उसमें इलेक्ट हुआ गया था, और जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। तो इस वजह से ऐसा बोल रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, दैट वाज नॉट ओनली द इलेक्टेड बट एक्चुअली इट वाज द पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें देखिए, जो प्रिंसली स्टेट थे शुरू में वो लोग बाइकआउट किए थे कि नहीं जाएंगे, बाद में फिर उन्हें लगा कि हमारा जो भी ज़मीनें हैं वो सब चली जाएंगी। तो फिर उसमें से कुछ लोगों ने अपने बात को रखने के लिए वहाँ पे फिर धीरे धीरे वो लोग भी आना शुरू किए थे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने भी ये चीज़ उसी वीडियो में देखा होगा, अगर आप उसको देखोगे तो यू विल गेट आइडिया, ओके। Moreover, the member were to be indirectly elected by the member of the provincial assemblies who themselves were elected on limited franchise, ठीक है। वही बोल रहा है कि बट ज़्यादातर लोग जो दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, ठीक है। एंड दे वर एक्चुअली बाय लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड मीन्स सबको वोटिंग राइट नहीं दी गई थी वहाँ पे, कुछ क्लास को वोटिंग राइट दी गई थी, वही लोग वोट करते थे, और जो भी मेंबर कंटेस्ट करता था वो इलेक्ट होके आता था, ठीक है। इसके अलावा द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर 296 अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। अब देखिए, ये जो 296 सीट है, 296 सीट्स हैं, इसका जो इलेक्शन कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, ठीक है। दे वर ऑल फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। और देखिए, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने 208 सीट पे वो वॉन हुए थे, एंड द मुस्लिम लीग हैज़ वॉन द 73 सीट्स, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले थे, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनको 208 सीट्स मिली थी, एंड द स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट गॉट रिमेनिंग 15 सीट, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्मॉल ग्रुप्स और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी उसमें कंटेस्ट किए होंगे, उन लोगों का मिला के टोटल 15 सीट था, ठीक है। ये मुस्लिम लीग फिर बाद में निकल जाती है पार्टीशन के बाद, एंड दे वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। शुरू में ये आके बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब तक डिवाइड नहीं हुआ रहता, बट जैसे लियाकत अली था, सो ही वॉज द पार्ट ऑफ, जिन्ना नहीं आया था बट लियाकत अली वॉज देयर, बट जब पार्टीशन हुआ तो वो चला गया पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस वॉज द मुस्लिम लीग। However, 93 seats allotted to the princely state were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly। देखिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट हुआ था,
ये फिल्ड नहीं हुआ था क्योंकि ये इन लोगों ने आई मीन दे डिसाइडेड टू अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट धीरे धीरे वो आना शुरू कर दिए थे। ठीक है, जब वो लेक्चर देखोगे, तो वो वीडियोस देखोगे, तो उसमें आपको शुरू में लगेगा कि यू विल फाइंड दैट शुरू में दे वर नॉट वेंट टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट स्लोली दे हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग दैम। ओके, उन्हें लगा कि उनका जो रियासत है वो चली जाएगी, सो to raise their point they started joining the constituent assembly. There is some more points related to composition is given that we'll see. Although constituent assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, ठीक है, तो जो हमारा constituent assembly, it was not directly elected by the people of India ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, हम लोगों ने देखा ना कि इससे पहले जो ब्रिटिश प्रोविंशियल जो सीटें थी वो इलेक्ट होके आई थी, प्रिंसली स्टेट वाले नॉमिनेट होके आया था, तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ओके, बाय द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। इवन जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो भी लिमिटेड लोगों को दिया गया था। सब जैसे अभी हम जो भी 18 के ऊपर है वो वोट कर सकता है, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ना जैसे कि आप बोल सकते कि जो लोग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था, एजुकेटेड थे, पैसे वाले थे, मोस्टली उन लोगों को ही वोटिंग राइट दिया गया था, नॉट टू ऑल। ओके, तो इस वजह से एक काफ़ी जो बड़ा तबका था वो दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द असेंबली comprise representative of all India, all sections of Indian society, Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians and Christian, SCSTs including women, all these sections। ठीक है, बट जो हमारा जो भी एडल्ट फ्रेंचाइज था उसके बेसिस पे वगैरह जो असेंबली थी, इट वाज comprised representative of all section of Indian society। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया में उस समय जो भी हिंदूज थे, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC/STs including women, you will find women's also in the Constituent Assembly, all the section has been participated in the Constituent Assembly। ठीक है, and assembly included all important personality of India at that time with the exception of महात्मा गांधी। ठीक है, उस समय जो लोग भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर, जिनको भी आप सुना एज अ फ्रीडम फाइटर, राजेंद्र प्रसाद, मेनी मोर, ओके, अयंगर, सब लोग थे उसमें एक्सेप्ट महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं थे। देखिए, इसका रीज़न ये था कि ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, उस समय बंगाल में काफ़ी हेजिटेशन वगैरह हो गया था, तो वो उधर चले गए थे। ठीक है, एंड ही वॉज एक्चुअली नॉट हैप्पी विद दिस, सो माइट बी दैट वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सो ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, so yeah, this is the first part। There is lot more things given for the making of constitution, we'll see one by one। Okay, so I don't want to make very bulky or very lengthy video, so that's why I'm splitting in the parts so that your interest will be there। Okay, thank you for watching।